Hello everyone. So today we will be studying a very small topic which is the STD kits. Now it is a long table which requires memorizing all the different colors, what are the syndromes, then the drugs which are used, right, and lots of kit, 7 different types of kit. So let us try to simplify it. Also, we will be studying the incubation period of the most important sexually transmitted diseases and what are those, the 5 classical STDs which are described. It can be easily remembered by DSLR. So these are the 5 classical STDs, right? So what is D? D is your donovanosis, S is your syphilis, L is LGV, with R you can remember gonorrhea and chancroid. So these are the 5 different conditions, and if you see the causative organisms for donovanosis, it is what causes donovanosis? It is Klebsiella granulomatis. Then syphilis, Treponema pallidum. Then for LGV, it is Chlamydia trachomatis. Then for gonorrhea, it is Neisseria gonorrhea, and for chancroid, it is Haemophilus ducreyi, right? So let us see the incubation period here only, right? So it will be easier for you to remember. Now for donovanosis, okay, first let's see about this LGV. So how many letters are there in LGV? You will say 3, right? So there are only 3 letters in LGV. So the incubation period will be 3 to 12 days. Okay, then donovanosis. Now donovanosis, you can remember the first 3 letters, don, right? Don, because when you say donovanosis, don is the dominant. So don also has 3 letters, so the incubation period is here 3. But which is more dominant, like which is more empowering, LGV or don? Obviously we will say don, he has more powers. So the incubation period, you just reverse it, so it is not 12 but it is 21 days. So for LGV we said 3 letters, so 3 to 12 days. But for donovanosis, because don is more empowering, so and it has 3 letters as well, so incubation period is 3, but now it is not 12 days, it is 21 days. Okay, then coming to syphilis. Now syphilis is very easy, 9 to 90 days. I don't think you will have any problem in remembering this, 9 to 90 days. Just say it once or twice and you will remember it. Then what about chancroid and gonorrhea? So first let's see about chancroid. I hope you can see the similarity, right? Chancroid and छन से जो टूटे कोई सपना. So you don't have to remember anything extra, it is right here, see, छन. So chancroid and छन से कोई सपना टूटता है means it is very, like it won't last long. छन से टूट गया, so just for 3 to 5 days, मतलब 1 week भी नहीं, 3 to 5 days, that is the incubation period for chancroid. Then coming to gonorrhea. Now
the word has gone means someone, he just came and then he was gone, right, in a blink. So it has the minimum incubation period, which is 1 to 5 days. Okay, so for Sancroid it is 3 to 5 days. Okay, but gonorrhea, like he just gone in a blink, he's gone, so it is 1 to 5 days. Okay, so this is all about the 5 classical STDs and their incubation period, which are often asked in MCQs. So next let us see about the STD kits. So STD kits. Before I proceed, I want to just tell 4 points about these kits, 4 very general points, and you only have to learn these 4 points, because when I will make the table, I will use only these 4 points and you will see the whole table is complete, right? So what are those 4 points? The first point is, you must remember these 4 points. So the first is azithromycin. It is not present in kit number 2, kit number 5 and kit number 6. Okay. The second point, doxycycline. It is present in number 4, 6 and 7. What is the third point? Cefixime. It is in 1 and 6. And what is the fourth point? All the kits, they have 2 drugs. They have a combination of 2 drugs, except kit number 5 and kit number 6. 5 पहले आता है, it is only 1 drug, and 6 comes next, it has only 3 drugs. I mean, it has 3 drugs. So these are the 4 points you have to remember before we begin, and these are also easy to remember. Just say it once or twice. Like अजिथ्रो 256 में नहीं होता, डॉक्सी 467 में होता है, सेफिक्सिम 16 में होता है, एंड जितने भी किट्स सब में 2 ड्रग्स होते हैं, बट 5 में 1 होगा एंड 6 में 3 होंगे. फॉर द कलर्स, जस्ट रिमेंबर दिस सेंटेंस: बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वाइट bribe. So it is this bribe means काला धन. बट हमने तो पढ़ा है काला धन ब्लैक होता है, बट यहाँ पे तो वाइट है. सो दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड. सो बाय ग्रेस ऑफ गॉड वाइट ब्राइब, राइट, मीन्स वाइट ब्राइब हो गया. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वाइट ब्राइब हो गया. बट यू हैव टू रिमेंबर कि ब्राइब तो ब्राइब है, अल्टीमेटली ये ब्लैक हो ही जाना है. सो दिस लास्ट बी that the kit number 7, that is black. So what are the kits? Now there is confusion regarding the first 2G. That is why I have made this so that it is easier, because यहाँ पे ग्रेस लिखा हुआ है, एंड ग्रेस ग्रीन से ज़्यादा सिमिलर है या फिर ग्रे से, तो ऑब्वियसली ग्रे से. तो फर्स्ट ग्रे, सेकेंड जी इज़ फॉर ग्रीन,
देन यहाँ पे तो लिखा हुआ है वाइट, देन बी यहाँ पर ब्लू हो गया, क्योंकि हमने तो बोला कि लास्ट का बी जो है वो तो ब्लैक हो जाना अल्टीमेटली। देन ये आर रेड हो जाएगा, दिस वाई विल बी येलो एंड दिस बी, लास्ट बी विल बी ब्लैक। तो ये हो गया हमारे कलर्स। नाउ अगर हम किट्स देखते हैं तो किट नंबर 1, इसे मैं हटा देता हूँ। तो किट नंबर 1, तो इसका कलर क्या होगा, बाई ग्रेस ऑफ गॉड। तो पहला हो गया ग्रे, सो फर्स्ट वन ग्रे। देन ड्रग कौन से, अब यहाँ पर आपको मैंने जो 4 पॉइंट बोले वो यूज़ करना है। मैंने बोला कि अजिथ्रो 256 में नहीं होगा, मतलब बाकी जितने जगह 256 को छोड़ के वहाँ पर होगा। तो हम सब में ए लिख लेते हैं, मीन्स ए फॉर अजिथ्रोमाइसिन। और हमने बोला कि 2 में नहीं है, 5 में नहीं है एंड 6 में भी नहीं है, तो मैंने हटा दी वो जगह। तो जितने बचे 1, 3, 4 एंड 7 वहाँ पर अजिथ्रोमाइसिन यूज होगा। देन मैंने बोला डॉक्सी विल बी इन 467, मीन्स 4, 6 और 7 में डॉक्सी होगा। मीन्स 4 में हमारा डॉक्सी है, 6 में हमारा डॉक्सी है एंड 7 में डॉक्सी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोला मैंने, सेफिक्जिम वो 16 में है, मीन्स 1 और 6 में है, तो यहाँ पर सेफिक्जिम एंड 6 में सेफिक्जिम। ठीक है, एंड मैंने चौथा पॉइंट क्या बोला था कि सारे किट में 2 ड्रग है एक्सेप्ट 5 एंड 6। 5 में एक ही ड्रग है एंड 6 में 3 ड्रग है। ठीक है, और बाकी सब में 2 है, तो हमारे किट नंबर 1 में हो गया कंप्लीट अजिथ्रो प्लस सेफिक्जिम। हमारे 4 में कंप्लीट हो गया अजिथ्रो प्लस डॉक्सी। हमारा 7 में भी हो गया अजिथ्रो प्लस डॉक्सी। इसके बाद हम पहले 5 देख लेते हैं। तो 5 में एक ही ड्रग है, मीन्स वो अकेला है, और अकेला मीन्स बस एक है। तो अगर हम सोचे कि अकेला क्या है, जैसे एक साइकिल जो वो अकेला है, 2 साइकिल तो एक साथ नहीं होती, साइकिल तो अकेला होता है। सो ए साइक्लोवीर, तो एक साइकिल जो है वो अकेला है। तो हमें जब ये पता चल गया कि 5 में बस एक ही ड्रग है, तो अकेला कौन है, साइकिल है, तो ए साइक्लोवीर हो जाएगा किट नंबर 5 में। और जब मुझे ये पता है कि किट नंबर 5 में ए साइक्लोवीर है, तो मुझे इसकी यूज़ भी पता है, क्योंकि ए साइक्लोवीर यूज़ होता है हर्पेटिक अल्सर में। तो हर्पेटिक अल्सर में हम ए साइक्लोवीर यूज करेंगे। फिर किट नंबर 6 में हमने बोला कि 3 ड्रग्स होगी उसमें। तो बैंक जाते हैं कैश विड्रॉ करने के लिए, तो वहाँ पर एक नई मशीन अब आने लगी है, जो कि है CDM मशीन, विच इज़ कैश डिलीवरिंग मशीन। CDM कैश डिलीवरिंग मशीन। और जब हम कैश निकालने के लिए झुकते हैं तो हमारे एब्डोमेन में पेन होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बनता है, राइट। तो ये अगर मशीन है, CDM मशीन है, एंड ये हम है, तो जब हम झुकेंगे कैश निकालने के लिए, तो हमारे लोअर एब्डोमेन में पेन होगा। तो सी क्या था, सेफेक्जिम, डी डॉक्सीसाइक्लिन, और ये एम क्या है, मेट्रोनिडाजोल। तो 6 भी कंप्लीट हो गई, और हमने इसका यूज़ भी पता चल गया कि हमने बोला जब झुकता है ये तो लोअर एब्डोमेन पेन होता है, तो किट 6 यूज़ करते हैं लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए। किट नंबर 7 की बात करते हैं। किट नंबर 7 में अजिथ्रो प्लस डॉक्सी है,
ऑर्किड 7 हमने पढ़ा था कलर्स, तो लास्ट वाला ब्लैक हमें पता है, तो ये ब्लैक के यूज़ करेंगे हम ब्लैक डेथ के लिए। एंड ब्लैक डेथ क्या है? प्लैग। मीन्स अगर हमें इंग्वाइनल बुबोज आ रहे हैं तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे किट नंबर 7। फिर कलर्स तो हमने देख चुके थे, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मीन्स ग्रीन, वाइट, एंड देन हम देखा था ब्राइब, BRY एंड B, तो BRI की जगह हमने BRYB कर दिया। तो ये हो गया ब्लू, ये रेड, ये येलो, तो कलर्स वाली कॉलम हो गई। ओके, तो किट नंबर 4 में हमने देखा था कि अजिथ्रो और डॉक्सी दे रहे हैं हम, ये हम देते हैं नॉन हर्पेटिक अल्सर के लिए, नॉन हर्पेटिक अल्सर के लिए दे रहे हैं जो कि रेसिस्टेंट है पेनिसिलिन को। सो वी यूज किट नंबर 4 फॉर दोज कंडीशंस ऑफ नॉन हर्पेटिक अल्सर विच आर रेसिस्टेंट टू पेनिसिलिन। तो किट नंबर 3 भी सेम चीज़ है, बट वहाँ पर रेसिस्टेंट नहीं है, यूज़ करते हैं हम सेम कंडीशन के लिए, नॉन हर्पेटिक अल्सर के लिए ही यूज़ करते हैं। बट द डिफरेंस इज दोज पेशेंट्स दोज आर ससेप्टेबल टू पेनिसिलिन। तो जब वो ससेप्टेबल है तो हम वहाँ पे क्या देंगे? पेनिसिलिन देंगे। कौन सी? बेंजाथाइन पेनिसिलिन, जो कि डेपॉट प्रिपरेशन है। तो हमने अजिथ्रो तो लिख रखा था कि अजिथ्रो तो होता है, क्योंकि अजिथ्रो बस 256 में नहीं है, तो 3 में तो है। और हमने बोला कि 4 में हम यूज़ कर रहे हैं नॉन हर्पेटिक अल्सर के लिए जो कि पेनिसिलिन रेसिस्टेंट है, तो हम 3 में कौन सी यूज़ करेंगे? अजिथ्रो तो दे रखी थी हमने, हम उसमें डॉक्सी की जगह पेनिसिलिन देंगे, क्योंकि पेनिसिलिन तो काम कर रही है यहाँ पे। देन किट नंबर 2, किट नंबर 2 के लिए याद रखिए हम इसे यूज़ करते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए, और मेनली वेजाइनल डिस्चार्ज फंगल होगी, ठीक है। तो आपने ये तो पढ़ा होगा, अगर वेजाइनल डिस्चार्ज है तो हमारे पास 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं, ठीक है। तो B फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस, T फॉर ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, C फॉर कैंडिडा एल्बिकन्स। नौ इसमें से फंगल कौन सा है? कैंडिडा एल्बिकन्स। तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं किट नंबर 2। तो ये कॉज करता है फंगस। तो हमारे ड्रग्स भी फर्स्ट और लास्ट लेटर से, फर्स्ट में F से क्या हो गया? F से हो गया हमारे पास फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, एंड S क्या हो गया? सेक्नेडाजोल। देन 2 भी हो गया। देन किट नंबर 1, किट नंबर 1 की कलर हमें पता है ग्रे कलर होती है। ड्रग्स हमने देख रखी है अजिथ्रो प्लस सेफेक्सिम, क्योंकि सेफेक्सिम 1 और 6 में होगा। यही 4 पॉइंट है, आप इससे बहुत कुछ डिराइव कर सकते हैं, इसलिए 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, नो डाउट। तो किट नंबर 1, और किट नंबर 1 यूज़ करते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ यूरेथ्रल और सर्वाइकल डिस्चार्ज के लिए। तो बस इन 2 पॉइंट से, एक ये इन 4 पॉइंट से और ये कलर वाली निमोनिक से हमने पूरी टेबल को बना दी है।